myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, GDB, Government Girls College, Kota. 4 membered heterocycles MSc सेमेस्टर 3 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि किस तरह से जो है वो 4 membered हेटेरोसाइक्लिक कंटेनिंग नाइट्रोजन कंपाउंड एजिटिडीन जो है सिंथेसाइज किया जा सकता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या केमिकल रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट मेंबर है हमारा ऑक्सीटेन्स। ऑक्सीटेन्स जो हैं ये 4 membered हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैं जिसके अंदर 4 membered हेटेरोसाइक्लिक ईथर्स आर कॉल्ड ऑक्सीटेन्स। ईथर्स होते हैं ये cyclic ethers. These are also designed as a oxocyclobutanes or trimethylene oxide, assigning position first to the oxygen atom. ये 4 membered heterocyclic compounds हैं, ईथर cyclic ethers हैं जिन्हें कि हम ऑक्सीटेंस कहते हैं, और ये पोजीशन 1 पर ऑक्सीजन एटम इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। तो अब इसका देखें कि हम किस तरह से इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। फ्रॉम 1,3 हेलोहाइड्रिन्स इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होगा। ऑक्सीटेन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन ऑफ 1,3 हेलोहाइड्रिन्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। द yield is good but ring closure is slow. Yield of oxytenes is increased by alkyl substitutions located on carbonyl carbon first, while decreased if alkyl substituent is located on the halogen bringing carbon. तो ये हम ऑक्सीटेन्स इनसे बना सकते हैं। Prior acetylation of 1,3 हेलोहाइड्रिन increases the rate of intramolecular cyclization. तो इस इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन से ही हम इसको बना सकते हैं ऑक्सीटेन्स। ट्राइमिथाइल अमीनो एंड टोसाइलेट ग्रुप कैन बी यूज्ड बाय लिविंग ग्रुप इन प्लेस ऑफ हेलोजन। सेकेंड है फ्रॉम ऑक्सीरेन मिथाइलिन इंसर्शन। Oxirane reacts with dimethyl oxosulfonium methylide yields oxytenes involving methylene insertion from less hindered side. Less hindered side पे इनका फॉर्मेशन होगा। फोटोकेमिकल साइक्लोएडिशन 2+2 या पैटर्नो-बुच्ची रिएक्शन। Oxytenes can be prepared by +2+2 cycloaddition of carbonyl compound to olefins. कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन्स के जब ओलिफिन्स के साथ में हम रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन एट 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये भी जो है वो हमें ऑक्सीटेन्स बनाते हैं। प्रॉपर्टीज में देखें तो ऑक्सीटेन्स इज अ वाटर मिसिबल लिक्विड with boiling point 47 degree centigrade. Some beta lactones occurs naturally and show antibiotic properties. For example, obiflurin जो है वो एंटीबायोटिक के रूप में इसमें प्रयोग में लाई जाती है, जो कि एक 4 membered हेटेरोसाइक्लिक ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है। केमिकल रिएक्शंस अगर हम देखें तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। इन कॉन्ट्रास्ट टू ऑक्सीरेन, द ऑक्सीटेन्स ring is cleaved only under more vigorous condition by nucleophiles. Oxytenes reacts with Grignard reagents at a higher temperature
with the lengthening of carbon chain. Oxytenes reacts with phenyl magnesium bromide and gives 3-phenyl propanol. तो इससे प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन होगा. If substituent is present at 2 position, nucleophile attacks at less substituted carbon atom. Single product is predominate in this reaction. Reaction with primary amine, beta-naphthol, thiophenol and hydroxy-ion. The oxytane ring is cleaved by hydroxide ion amines beta-naphthol and thiophenol or propellant heating at about 150 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इनसे भी जो है वो हम ये रिएक्शन करता है CH3NH2 से और अमीनो एल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है. इसी तरह से NaOH के साथ में ये सल्फर एल्कोहल्स बनाते हैं. नेक्स्ट रिएक्शन है रिंग ओपनिंग विथ इलेक्ट्रोफाइल्स. Oxytenes are known to undergo a number of acid catalyzed reactions. Oxytenes are susceptible to attack by electrophilic reagents. Though the structure and hybridization of oxytenes and oxyrenes are basically different, the reactivity of two ring systems is identical under acidic conditions. Less strain in oxytane are compared as oxyrene can be compensated for the greater electron donor capability of oxygen atom in oxytane. Some ring opening reactions are shown. हम देखें कुछ रिंग ओपनिंग रिएक्शन. जैसे ये है हमारा ऑक्सीटेन. ये ऑक्सीटेन जो है वो रिएक्शन कर रहा है इथेनॉल के साथ में और इससे हमारा एल्कोहलिक फॉर्मेशन हो रहा है. इसी तरह से ये बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जैसे रिएक्शन करी और लॉन्ग साइड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का इसने ट्राईमिथाइलिन कार्बोनेट का फॉर्मेशन इससे हो जाता है. तो इन अनसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीटेन टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय पुश पुल मैकेनिज्म. देयर फॉर्मेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ oxonium ion as an intermediate which is attacked at C2 or C4 positions. Preferred position of attacked carbon is least hindered or alpha carbon atom. If a free stable carbonium ion is possible, then the reaction proceeds to yield a single product. This is the case which has been seen in example 4 हमने देखा. Photochemical and thermal reactions. Trans 1-phenyl pentene is obtained by the pyrolysis of trans 3-phenyl oxytenes at 150 to 300 degrees centigrade. This reaction is stereospecific. तो ये स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन होती है. इसके अंदर जो है ट्रांस और सिस प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है. ऑक्सीटेन्स ये हम इसमें देख भी रहे हैं कि ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इससे हो गया. ऑक्सीटेन्स कंटेनिंग क्रोमोफोरिक सब्स्टिट्यूएंट्स टेंड टू अंडरगो फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग रीअरेंज्ड प्रोडक्ट. इसका एक एग्जांपल हम देखें फोटोकेमिकल रिएक्शन का. 2,2-diphenyl 4-methyl allene propylene undergoes photocrement to isomeric cyclobutane derivative in presence of sensitizer ट्राईफिनाइलिन. ट्राईफिनाइलिन की प्रेजेंस के अंदर जो है ये फॉर्मेशन करता है. इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा 4 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है
थाइटेन्स। थाइटेन्स जो हैं वो 4 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड है जिसके अंदर की सल्फर जो है एज ए हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है। थायोसाइक्लोब्यूटेन इज नोन formally as a thioetins. The partially unsaturated ring is present in thioetins or thioetes. Thioetins is also designed as a thiocyclobutane trimethylene sulfide or a 1,3-propylene sulfide. तो ये है हमारा थाइटेन्स और ये है थाइट्स जिसके अंदर की सैचुरेशन है थाइटेन्स और अनसैचुरेटेड जो है वो थाइटी कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे हम इनको बना सकते हैं इसका एक मेथड हम देखें। फ्रॉम 1,3 डाईहेलोएल्केन्स इंट्रामोलिकुलर रिंग क्लोजर रिएक्शन होती है ये। द रिएक्शन ऑफ 1,3 डाईहेलोएल्केन्स with sodium or a potassium sulfide in alcohol water mixture at 70 degree yields thioetins. The yields are low 50%. This is common and earliest known method for the synthesis of thioetins. CH2Br, CH2, CH2Br plus Na2S। तो इससे भी हम इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल वाटर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो इससे हम बना सकते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड कंटेनिंग हेक्सा डिसाइकिल ट्राईइथाइलिन अमोनियम क्लोराइड as a phase transfer catalyst increases the yield of to 70%। फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट है ये। इसकी प्रेजेंस के अंदर अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो 70% तक यील्ड का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। थाइटेन्स कैन ऑल्सो बी सिंथेसाइज्ड बाय एल्कलाइन decomposition of monothioureanium salts obtaining by the action of 1-bromo-3-chloropropane with thiourea। इससे भी हम थायोयूरिया से इसको प्राप्त करके रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमो 3-क्लोरोप्रोपेन की थायोयूरिया के साथ में, तो इससे थायोनियम सॉल्ट्स बनते हैं। ये थायोनियम सॉल्ट ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करते हैं और 3-क्लोरो मर्केप्टेंस बनता है इनसे। ये 3-क्लोरो मर्केप्टेंस जो हैं वो -HCl निकलता है और ये थायोटेन्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है थायोयूरिया और 3-ब्रोमो-3-क्लोरोप्रोपेन के साथ में रिएक्शन करवा के भी बना सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से 4 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड ऑक्सीटेन्स हम बना सकते हैं, क्या केमिकल रिएक्शंस हैं। इसी क्रम में हमने देखा कि सल्फर कंटेनिंग 4 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड थायोटेन्स जो है उसको भी हम किस तरह से बना सकते हैं, एक मेथड हमने देखा। नेक्स्ट मेथड और केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।